हेलो, वेलकम टू स्पोर्ट्स नाका। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फुल कॉन्टैक्ट चैंपियनशिप विच इज टू बी हेल्ड ऑन 8 अप्रैल एट बलकवड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर. Full Contact Championship powered by Dragon MMA Gym Pune, which is now part of WSOF. Sports Naga is a digital media partner for this event. Today we have with us Mr. Vishal Balkavade, who is the owner of Vishal Balkavade Wrestling Center. Sir, welcome to Sports Naka. How are you? I'm fine, thank you. What do you think about the success of FCC 14? With FCC 14 just around the corner and just few days left for the showdown, the fighters are really training hard. The organizers are really working hard in promoting the show and making sure that all the preparations fall in their places. And I'm pretty confident that the whole team is going to make FCC 14 one of the biggest hits in the FCC history, and people are going to witness extremely good fights, and the fighters are going to put up a very good show for the fans, and I'm sure all the MMA world is going to enjoy the show. Which fighting will be more exciting according to you? All the fighters playing in this event are extremely talented and tough. I cannot pick up any one fight or any one or two players to look forward to, but the whole fight card is so well put up that it's a very tough call to pick up any one who's going to perform the best or who's going to be outclassed. All the fighters are very good. In future, are you planning to organize more such events in your wrestling center? Yes, the Balkode International Sports Center has been established in the year 1983, and till date, we have been organizing wrestling competitions all year around. And since we got affiliated with FCC, this is the first time we are going to host an MMA event in our sports center, and we are pretty sure that this show is going to be great hit, and players are going to get amazing platform and one of the best platform actually to showcase their talent in mixed martial arts. And yes, we are looking forward to host more of these like events, which will definitely help all the players to show and bring out their real talent in the MMA world, and also looking after the players' interest that mixed martial arts is one of the most fastest growing sport in the world, and to become a part of that sport is always going to be a dream for every MMA athlete, and which I'm pretty sure that with the help of FCC, the players are going to achieve it very soon, and India is going to create world class MMA fighters pretty soon. Thanks. Thank you, Vishal sir, for your valuable time. Right now, we have with us Mr. Shantanu Ambildok. Mr. Shantanu Ambildok is a owner at Dragon MMA Gym Pune. He is also coach and manager of many mixed martial artists. Sir, welcome to Sports Naga. How are you? All good, sir, and I'm very thankful to Sports Naka for covering this FCC 14 officially. Plus, I'm really thankful that somebody from the media is taking initiative to cover sports apart from cricket. क्योंकि आप भी जानते हो कि इंडिया में क्रिकेट ही सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, ऐसा सिनारियो लगभग तैयार हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मीडिया हाउसेस को, क्योंकि मीडिया अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट किसी स्पोर्ट्स को कवरेज देती नहीं है. तो मैंने आपका जो थ्रू आउट फेसबुक पेज, ट्विटर पेज वगैरह है तो फॉलो किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि आप क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को जिस तरीके से कवरेज देते हो. और स्पेशली टॉकिंग अबाउट एमएमए, ब्रदर्स और सुल्तान के बाद इंडिया में एमएमए क्या है वो लोगों को अब पता चल चुका है. और अभी आप जिस तरीके से एजुकेट कर रहे हो लोगों को कि एमएमए इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, और लोगों को भी समझ आएगा कि क्रिकेट से कई ज़्यादा पैसा इस स्पोर्ट्स में है, और इससे पेरेंट्स को बढ़ावा मिलेगा कि अपने बच्चों को वो प्रोफेशनली
एज अ करियर पर्सपेक्टिव के तौर पे स्पोर्ट्स में वो भेजे, और हमारे जितने पेरेंट्स उनको उनके बच्चों को एमएमए जिम्स में डालेंगे, उतने ही हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चैम्पियन तैयार होंगे. So, how excited you are for this event? I'm pretty excited about this event because this is going to be officially part of WSOF Global, the MMA World Cup. बहुत सारे promoters आज तक इंडिया में ट्राई कर रहे थे कि WSOF को इंडिया में प्रोफेशनल फाइट्स के लिए लाया जाए, लेकिन FCC को ये सक्सेस मिला है, और बहुत ही मैं खुश हूँ FCC के लिए, क्योंकि ड्रैगन MMA जिम इज़ अ प्राउड पार्टनर ऑफ FCC. एंड हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी प्रोमोटर्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो, और इंडियन फाइटर्स को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, इंडियन फाइटर्स को बेहतर एक्सपोजर मिले, पैसा मिले. तो FCC 14 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये WSOF के साथ टाई अप होने के बाद फर्स्ट इवेंट है, और इन फ्यूचर ऑल्सो FCC गॉड विलिंग बहुत ग्रोथ करेगा, और हम लोग का सपोर्ट उनके साथ पूरी तरह से बना हुआ रहेगा. Hmm. So, we would like to know how you have started your career in MMA. यस, राइट. तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स का जो मेरा जर्नी है, तो वो कहीं पे मेरे जीन्स से शुरू हुआ. मेरे जो दादाजी है वो खुद एक अच्छे रेसलर थे, और वो ट्रेनिंग पार्टनर थे इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक इंडिविजुअल मेडलिस्ट खाशाबा यादव के. लेट मिस्टर पंडित राव अम्बिल लोग स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू उनका एज अ पुलिस इंस्पेक्टर सिलेक्शन भी हुआ था. तो मेरे नाना जी भी जो थे वो बहुत ही शौकीन थे कुश्ती के, मड रेसलिंग के, और वो खुद अपनी कार लेके बहुत जगह जाते थे, बहुत गांव-गांव में जहाँ दंगल होते थे वो देखते थे. तो उसी लेगेसी को शायद मेरे जीन्स में जो था वो नेचुरल अट्रैक्शन की वजह से कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ मैं खींचा चला गया, और बचपन से ही मैं बहुत सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स फॉलो करता था, और अपना स्किल्स अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मैंने ट्राई किया, और मैं खेलता गया, बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी जीते. मैंने कोल्हापुर से अपना कॉम्बैट स्पोर्ट्स का जो ट्रेनिंग था वो स्टार्ट किया. वहाँ पे मैंने कराटे में अच्छा ट्रेनिंग किया, एंड वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण मैं इंडिया के दूसरे सिटीज़ में जाके ट्रेन करता रहा, और बहुत सारे अलग अलग इंडिया के अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स पे और वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स है, मैंने कोशिश की कि वहाँ पे जाऊँ और ट्रेन करूँ और अपने आप को अपग्रेड करूँ एज अ फाइटर. तो मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो नॉलेज है MMA का, और मेरा जो दुनिया भर में नेटवर्क बन गया है विद द बेस्ट फाइटर्स एंड द प्रमोटर्स, तो उसका फ़ायदा मेरे फाइटर्स को हो, और मेरे फाइटर्स इंडिया का नाम रोशन करे. तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी दे रहा हूँ, और प्लस मैं उनको मैनेजरल असिस्टेंस भी दे रहा हूँ टू मेक श्योर कि उनका करियर अच्छे ट्रैक पे रहे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करियर बना सके MMA में. क्योंकि मैंने देखा है कि जब फाइटर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है, तो जैसे मंजीत कोलेकर के साथ हुआ कि उसके मैनेजर ने उसको चीट किया और उस पर थोड़े गलत एलिगेशंस लगाए एज पर हर कॉन्वर्सेशन विद द MMA इंडिया शो. तो ये मैं चाहता हूँ कि किसी फाइटर के साथ ना हो, और
फाइटर्स का करियर अच्छे से डेवलप होता रहे, वो कहीं पे गलत तरीके से ना फंसे और उनको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म मिले। तो यही मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि फाइटर्स को मैनेजमेंट सपोर्ट देना, ट्रेनिंग देना। तो ये दोनों तरीके से मैं अपना अभी एमएमए करियर जारी रख रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत सारे अच्छे यंग प्रॉस्पेक्ट्स को डेवलप करूँगा। और अभी बहुत सारे फाइटर्स जो हैं मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे एंथनी सियोम, उसका रिकॉर्ड अभी 8-1 प्रोफेशनल, सॉरी 9-1 प्रो एमेच्योर और 1-0 प्रोफेशनल हो गए, प्लस एनेस्थेशियस जिसका 5-1 एमेच्योर और 3-0 प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो गया है, योगेश यादव जो बहुत बड़ा स्टार बन गया रोडीज के बाद, वो नेशनल ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप भी जीती है उसने। और बहुत अच्छे फाइटर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट्स में नेशनल चैम्पियनशिप्स एंड स्टेट चैम्पियनशिप्स जीती है। तो ये सारे अच्छे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ और गॉड विलिंग वो सभी के नाम में अभी इस इंटरव्यू में शायद नहीं ले पाऊँ, लेकिन सभी बच्चे हैं जो अच्छे कर रहे हैं और उनका फोकस अगर बना रहे तो मैं उनको गॉड विलिंग ज़रूर बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म पे खिलाऊंगा। Okay, sir. Who is your favorite fighter in this upcoming event and why? टॉकिंग अबाउट FCC 14, तो ऑब्वियसली मेरे फेवरेट फाइटर्स जो मेरे फाइटर्स है वही रहेंगे एनेस्थेशियस एंड योगेश। योगेश तो मेन इवेंट ही खेल रहा है, थैंक्स टू दी FCC मैनेजमेंट कि उन्होंने मेरे फाइटर को मेन इवेंट दिया। और इंडिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट स्टार भी है योगेश, सबसे ज़्यादा उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसके स्टारडम के अकॉर्डिंग उसको मेन इवेंट मिला। और मैं चाहता हूँ कि टैलेंट लाइक योगेश एंड एनेस्थेशियस ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिले, वो बेहतर प्लेटफॉर्म्स पे खेले। कई इंटरनेशनल प्रमोटर्स अभी उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और योगेश, एनेस्थेशियस, इन दोनों के साथ मेरे बेस्ट विशेस है। एनेस्थेशियस का अभी 3-0 प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, हालांकि शेयरडॉग में उसका रिकॉर्ड 1-0 दिखाया जा रहा है। वो एक प्रमोटर का गलती है कि उन्होंने प्रॉपरली शेयरडॉग को रिकॉर्ड नहीं भेजा। मैंने शेयरडॉग को उसके बारे में कांटेक्ट किया है विद द प्रूफ्स कि उसने 3 फाइट्स खेले थे उस इवेंट में। तो होपफुली शेयरडॉग विल करेक्ट देयर थिंग्स कि उसके 3-0 जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली उस पर आ जाएगा सूनर। और टॉकिंग अबाउट योगेश, योगेश ने ऑलरेडी नेशनल ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप जीता था। इंजरी की वजह से उसका करियर थोड़ा डीरेल हो गया था, लेकिन नेवरदलेस वो अभी अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है। अभी वो एज ए ट्रेनर, उसको रिसेंटली जॉब मिला है बेंगलोर के एक जिम में, तो वहाँ पे भी वो अच्छा ट्रेनिंग उसका जारी है। तो उसका फाइटर्स मैनेजमेंट में कंटिन्यू देख रहा हूँ क्योंकि वो मेरे भाई जैसा है। और एनेस्थेशियस हैज़ बीन वेरी गुड इन बोथ ग्राउंड गेम एंड स्ट्राइकिंग। उसका बेस बहुत ही अच्छा है अंडर द ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर कोरस मार्विन, जो भारत मार्विन के नाम से भी जाने जाते हैं मेघालय में। तो उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया था इन मुआय थाई, इन BJJ। तो इंडिया में बहुत कम फाइटर्स होते हैं जिनका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो, और मुआय थाई और BJJ दोनों स्ट्रॉन्ग हो ऐसे तो बहुत ही कम फाइटर होते हैं। तो आई एम सो लकी टू हैव टैलेंट्स लाइक एनेस्थेशियस एंड एंथनी एंड योगेश एंड आयुष्मान मुखर्जी इन माई जिम, कि ये बंदे इंटरनेशनल कैलिबर के बंदे हैं। वो ये सभी बंदे इन टैलेंट है इन लोगों में कि वो UFC जाके खेल सकते हैं। और really honored to see all two of my boys, Yogesh and Anesthesius, in FCC 14, or they will rock in FCC 14. I'm sure about it.
Okay, okay. So highlight of this event is that two female Marathi warriors continuing the warrior legacy of Jija Rani and Tara Rani, शीतल जाधव will be fighting with समता सोनावने. इवेंट में गर्ल्स पार्टिसिपेशन भी है सर, क्या कहोगे आप इस मैच के बारे में? FCC has always given platforms to female fighters. FCC was one of the earlier promotions in the world जिन्होंने फीमेल फाइटर्स को फाइट्स देना शुरू किया था. इट वॉज लॉन्ग बिफोर SFL एंड इट वॉज इवन लॉन्गर बिफोर UFC. तो FCC के बारे में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि दुनिया में वो पहले प्रमोशन, वन ऑफ द फर्स्ट प्रमोशंस थे जिन्होंने फीमेल फाइटर्स को प्लेटफॉर्म देना शुरू किया. और उन्हीं के कैंप से निकली थी इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल विनर ऑफ MMA फीमेल, प्रियंका जी तोशी, जो काफ़ी मेरी अच्छी दोस्त है. और उन्हीं के कैंप से अभी अच्छे अच्छे टैलेंट डेवलप हो रहे हैं. और टॉकिंग अबाउट समता एंड शीतल, बोथ आर मराठी गर्ल्स. मराठों की जो कॉम्बैट हिस्ट्री है उसके थ्रू हमने चाइना बॉर्डर तक और उधर अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक झंडे गाड़े थे. तो कहीं पे वो दोनों लड़कियां अभी मराठाओं के कॉम्बैट हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि आजकल मराठा अपना कॉम्बैट हिस्ट्री भूल के कुछ अलग ही चीज़ों में पड़े हुए हैं. तो अच्छा लगता है कि दो लड़कियां अपना टाइम कई कॉफ़ी शॉप्स में और कई टाइम पास में वेस्ट ना करते हुए प्रॉपरली अपने कॉम्बैट करियर को फॉलो करके ट्रेनिंग वगैरह कर रही है और प्रोफेशनल फाइट्स खेल रही है. ओके, ओके सर. लास्ट क्वेश्चन टू यू. MMA की पॉपुलैरिटी दिन भर दिन बढ़ते जा रही है सर. आने वाले 5 सालों में आप MMA इंडिया को कहाँ पर देखते हो? सर, अगर हम देखें तो अगले 5 सालों में मैं इंडियन MMA का फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ. उसका रीज़न जो है वो इंडियन MMA में बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्रमोटर्स आ रहे हैं. बहुत बड़े जो इंटरनेशनल जिम्स है उसके फ्रैंचाइज अभी आ रहे हैं इंडिया में. जैसे अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो दिल्ली में अपना फर्स्ट ब्रांच खोल रहे हैं. और बहुत सारे अदर इंटरनेशनल जिम ब्रांड्स भी इंडिया में आ रहे हैं और इधर के जिम ब्रांड्स के साथ टाई अप कर रहे हैं. कहीं पे सेपरेट अपना खुद का इंडिविजुअल ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो उसके थ्रू ऑब्वियसली फाइटर्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा. मेरे जैसे जो मैनेजर्स है वो नेकी से काम कर रहे हैं और फाइटर्स को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एक्सप्लॉइटिंग फाइटर्स. जो इंडियन MMA में थोड़ा कम हो रहा था, फाइटर्स का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा था और फाइटर्स को प्लेटफॉर्म कम मिल रहे थे. तो मेरे जैसे और 10 नेक बंदे इस स्पोर्ट से जुड़ जाए तो इंडियन MMA UFC में सभी वेट डिवीजन्स में अपने झंडे गाड़ देगा और सभी वेट डिवीजन्स में हमारे चैम्प्स दिखाई देंगे. और ना केवल UFC, लेकिन जो अभी अच्छे अच्छे प्रमोटर्स आ रहे हैं विद द बिग मनी लाइक ब्रेव, तो उसमें भी हमारे फाइटर्स सभी वेट डिवीजन्स को डोमिनेट करेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है. अगले 5 सालों में बहुत ही इंडियन MMA का पिक्चर जो अभी है उससे काफ़ी बेहतर होगा. क्योंकि अभी आप देखो, 1 साल पहले इंडियन MMA में बहुत कुछ होता नहीं था. जब से सुल्तान और ब्रदर्स आया बहुत सारे लोगों ने MMA जिम्स ज्वाइन किए और अपकमिंग टैलेंट बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है. बहुत सारे BJJ ब्लैक बेल्ट्स इंडिया में आ रहे हैं टू ट्रेन गाइज, एंड उनकी ट्रेनिंग की वजह से अभी बहुत अच्छे से फाइटर्स हमारे यहाँ डेवलप हो रहे हैं. मैनेजर्स को भी समझ आ रहा है कि कुछ किस तरीके से हम इंटरनेशनल प्रमोटर्स को अप्रोच हमें करना चाहिए और किस तरीके से फाइटर्स को अपडेट रखना चाहिए विद द नॉलेज. तो ये सभी चीज़ें हो रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जैसे लोग
और ये MMA इंडिया शो जैसे लोग, MMA पॉडकास्ट जैसे लोग, जो MMA राउंड टेबल जो पॉडकास्ट है, ये लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को अबाउट द गेम एंड अबाउट द MMA स्पोर्ट्स। तो इसकी वजह से बहुत सारा अवेयरनेस अभी बढ़ रहा है, और उसी की वजह से इंडियन MMA का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने एमएमए के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उसका बहुत अच्छी तरीके से आपने विश्लेषण किया। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द इवेंट्स। Right now, we have with us Mr. Prashant Kumar, who is the organizer of this mega event. Welcome to Sports Naka. How are you doing, sir? Yeah, hi. I'm doing well and just a little tied up getting things together for the event. We're just 5 days away from FCC 14 and everything's under control. We've got a great team working on this event, as always. And so just a little busy getting things together. Sir, what is your preparation for this mega event? So a lot goes into preparing for an outstation event. Our base is in Mumbai. That's where we're headquartered. And we've, of course, in the past, we've done a couple of events out of Mumbai. We've done two in Goa, one in Indore. And now we've got this event coming up in Bhagur. Bhagur is very close to Devlali and Nasik. And we've tied up with the Balkaude International Sports Center, which is run by Vishal Balkaude. And one of the main things in getting an event together is to ensure that all the fighters are up to the mark, their training, that their cardio is intact. And then, of course, besides that, it's the entire production that goes into the event, ensuring that everything is in place. And we've got professionals handling everything. So it's pretty much like the other events that we've done in the past. And we've got fighters coming in from all over the country. So this should be a great event. How many spectators you are expecting for this event? Well, all the other events, the outstation events that we've done, like I mentioned earlier, two were done in Goa, one in Indore. So, these are still like Indore is a big city. It's a tier two town city. But this event which happens in Bhagur. Now, Bhagur is, it's more like a village, a small little village, and it's our first grassroots event, I would say, because like I said, we've earlier we were focusing on Mumbai, then we went to Goa, we went to Indore, but this is actually grassroots, and we're expecting a big turnout because we've got three fighters who are locals. When I say locals, they live in and around Nasik, and they train here at the Balkaure International Center, and they're pretty popular amongst the people here. So we are expecting a very good turnout because people are going to come and cheer for these guys. And if you ask me numbers, anywhere in the range of 2,000 to 3,000 people. FCC is gaining popularity in India. What is your take on that? FCC is India's longest running pro MMA network, and we've been active since 2009. When I say active, we've been putting up events since 2009, and this week we are ready with our 14th event, FCC 14. And in the past, we are really fortunate to have been featured in a lot of international publications like the New York Times, BBC, the Reuters Newsstream. And it's a matter of pride, that we're gaining a lot of popularity in the country. We've also taken fighters to international shows in the past, and we just hope to keep building the brand, building the sport, and make sure that it gets really huge in this country as well as it is abroad. So, are you planning to organize more such events in future? We do have some really interesting plans for the future. In fact, we're working on a format where we can do an event every month and also take it pan India, take FCC pan India to, smaller cities and smaller towns. And the idea is to keep creating a platform for, all our talented fighters and, develop the sport, build up the talent, and ensure they reach a stage where, they become heroes here and also international icons. So, that was the latest update from FCC 14.
Stay tuned at Sports Naka. Thank you.